Hello everyone. Now this is the second part of your hormones of pituitary, the hormones of posterior pituitary or neurohypophysis. We have studied the 6 hormones of your anterior pituitary or adenohypophysis. In that we have seen growth hormone or STH, then your LTH or prolactin, TSH, ACTH, FSH and LH. LH is also known as ICSH in males because it stimulates interstitial cells to secrete testosterone. Testosterone. So that 6 hormones belong to your adenohypophysis or anterior pituitary. Now there are just 2 hormones remaining from pituitary and one additional MSH. अपन उसके बारे में देख लेंगे शॉर्ट में. That is actually not secreted in human being, but देखेंगे उसके बारे में. The 2 hormones of neurohypophysis are ADH, also known as your vasopressin, and oxytocin, also known as pitocin. This is also called vasopressin, is also known as pitressin. Vasopressin also known as pitressin. नाम क्यों पढ़े अपन उसको भी देखेंगे, मीनिंग उसका. But first of all, let's see what is ADH. So ADH stands for anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone means it will prevent diuresis. Anti means opposite, diuresis, it will prevent diuresis, hence it is called anti-diuretic hormone. So you will see its function. First of all, it is secreted by, actually it is the hypothalamic hormone. It is secreted by supraoptic nuclei of hypothalamus. It is not actually secreted, not produced by pituitary. It is actually produced by hypothalamus, then carried by the neurosecretory cells into the neurohypophysis and stored in herring bodies and your pituicytes. आपको बताया था मैंने स्ट्रक्चर के टाइम पर ही. सो ये हार्मोन, ये दोनों हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पिट्यूटरी में आकर रुकेंगे एंड पिट्यूटरी विल रिलीज इट इनटू ब्लड स्ट्रीम. So सबसे important point है, याद रखो, these 2 hormones ADH and oxytocin are not produced by posterior pituitary. They are just stored in neurohypophysis for some time. They are actually produced by neurohypophysis. They are stored in neurohypophysis and then they are released into bloodstream. Hypothalamus उसको तैयार करेगा, neurohypophysis में store होंगे and then they will be released into bloodstream for their action by pituitary. तो pituitary बस इनको release करेंगे. प्रोड्यूस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस. सो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस द ऑक्सीटोसिन. पैराऑक्सी याद रखने को बोला था. सुप्रा एडी कैसी है? एडी. सो सुप्रा एडी ऐसा याद रखने का. सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस. इट इज नॉट न्यूक्लियस. याद है आपको, हाइपोथैलेमस में बता दिया था. सो दे आर पेप्टाइड हार्मोन्स, मींस देयर फंक्शन, देयर नेचर क्या है? पेप्टाइड हार्मोन. इनफैक्ट ऑक्सीटोसिन इज नोन एज न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन क्योंकि वो ब्रेन से तैयार हुआ वाला पेप्टाइड हार्मोन है, नर्वस सिस्टम से तैयार हुआ. सो इट इज स्पेशली कॉल्ड न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन. ओके. देन टारगेट साइट्स अगर देखें उनके फंक्शन के पहले, टारगेट ऑर्गन्स अगर देखें तो मेनली किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स. किडनीज, स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स पे ये एक्शन दिखाएगा. अपन एक एक का देखते, ऑक्सीटोसिन की बाद में बात करते. सो इनके फंक्शंस अगर देखें, सो इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस. ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन. लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपको बताया था मैंने किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है. सो जब भी बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है बहुत सारा, व्हेनेवर देयर इज वाटर लॉस, जब आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, सो ऐसे टाइम पे अपनी बॉडी वाटर कंजर्व करने के लिए ADH सीक्रेट करेंगी. ऑस्मोरिसेप्टर्स इन योर बॉडी विल आइडेंटिफाई द लूजिंग ऑफ वाटर. they will give message to hypothalamus. They will inform, osmoreceptors will inform your hypothalamus about the water loss. Then hypothalamus, it is associated with hunger, anger, fear, thirst, पानी, right? So प्यास से रिलेटेड है. सो हाइपोथैलेमस विल इंक्रीज योर थर्स्ट एज वेल एज इट विल लीड टू कंजर्विंग द वाटर. आपका पानी बचाने का काम करेगा बाय सिक्रेटिंग ADH. ADH सिक्रेट करेगा हाइपोथैलेमस. दैट ADH विल बी सिक्रेटेड बाय सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई. That ADH will come to pituitary in neurohypophysis. Then pituitary will release that ADH into bloodstream.
ओके, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, किडनी में कैसे एक्शन बताता है एडीएच. एडीएच इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग विच कंडीशन? डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस. Okay, to prevent water loss, ADH is secreted. ADH will now go to kidneys. ADH will now go to kidneys. In kidneys, it will increase the permeability of renal tubules, mainly DCT and collecting tubules. It will increase the permeability of renal tubules, mainly DCT and collecting tubules. तो आपका मालपिजियन बॉडी, PCT, हेनलेस लूप और DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रहता. सो यहाँ पे आपके मैक्युला डेंसा सेल्स रहते, क्यूबॉइडल सेल्स. सो ये बहुत नजदीक लोकेटेड रहते. जब ये थोड़े से लूज हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उनमें से फिर ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब हो पाएगा. More water can be reabsorbed through the glomerular filtrate, from glomerular filtrate, and more water can be reabsorbed by kidneys. और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फिर तैयार होगा. ज्यादा वाटर लॉस नहीं होगा यूरिन के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होगा. लेकिन कब? when there is increase in the permeability of renal tubules, especially DCT and collecting tubule, एंड वाले पार्ट में. सो यहाँ से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होगा. हेंस water reabsorption is promoted. Will more water is reabsorbed. Okay, water loss is prevented. Okay, और फिर आपका पानी ज्यादा नहीं जाएगा. हेंस यूरिन कैसे बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा. यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड. ओके, ये एक्शन है आपके एडीएच का, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू कंजर्व मोर वाटर, एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर. ओके, जब आपके पास बहुत ज्यादा पानी बच जाएगा तो उन पानी को अपन यूज करके बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे. लेकिन आपको साथ ही साथ प्यास लगेगी, आपका स्वेटिंग कम होगा, स्वेटिंग भी कम करने की कोशिश करेगा. हेंस इट विल एक्ट ऑन स्वेट ग्लैंड्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ओके, सो ये दो एक्शन उसके हो गए. लेकिन जब ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, सो इट विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर, to increase the flow of water, to flow of blood. ये उसका फंक्शन है. ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्शन क्या दिखाएगा? इट विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर. इट विल कंप्रेस द ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स उनका कंट्रैक्शन करेगा ब्लड वेसल्स का. दैट इज कॉल्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन या वैसोकंस्ट्रिक्शन. मतलब आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर से ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो होगा. हेंस दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. वैसो मींस ब्लड वेसल्स, प्रेस मतलब प्रेस करना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके, दो फंक्शन समझ में है. क्या कर रहा है वो? एक तो किडनीज में जाकर वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है और वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स. दूसरा काम ब्लड प्रेशर भी बढ़ा कर दे रहे हैं. ठीक है, व्हेनेवर देयर इज लॉस ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होता ब्लड का वगैरह, तो वो टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम भी एडीएच करे. ओके, लेकिन अगर एडीएच नहीं रहा सो हाइपोसिक्रीशन एक ही डिसीज है इसकी, हाइपर सिक्रीशन वाली डिसीज नहीं है. सो हाइपर को डैश कर दो. टेबल आपको कैसा बनाना है पता है आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. सो हाइपोसिक्रीशन जब होगा एडीएच का, सो दैट विल लीड टू अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस. कौन सी डिसीज होंगी आपको? सॉरी, डायबिटीज इंसिपिडस. इट इज नॉट योर डायबिटीज मेलाइटस. मेलाइटस इज शुगर, मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो इंसुलिन की वजह से. ये है डायबिटीज इंसिपिडस. ये क्या है? इसमें आपको क्या होगा? इसके सिम्टम्स रहेंगे, आपको लगेंगे, आपको कंटिन्यूअस यूरिनेशन होगा, पॉली यूरिया जैसी कंडीशन हो जाएंगी, बार बार यूरिनेशन होगा, पॉलीडिप्सिया, बहुत प्यास लगेंगी क्योंकि बार बार यूरिनेशन को जा रहा है तो बार बार पानी पीते रहना पड़ेगा उसको, थर्स्ट ज्यादा लगेगी उसको. ओके, और पॉलीयूरेसिस की कंडीशन होगी, बहुत यूरिन फॉर्म होगा. बहुत यूरिन क्यों फॉर्म हो रहा? क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा. वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन चाहिए? एडीएच चाहिए, बट एडीएच ही सीक्रेट नहीं हो रहा, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है. तो जब एडीएच कम रहेगा सो वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होगा, बार बार पेशाब आएंगी, बार बार प्यास लगेंगी और वही कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी डायबिटीज इंसिपिडस.
सो वाटर लॉस अगर ज्यादा हो रहा तो वो डायबिटीज इंसिपिडस दैट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। याद रखो एडीएच अगर बहुत अच्छा नॉर्मल रहा तो नॉर्मल यूरिन तैयार होगा, कॉन्सेंट्रेटेड भी तैयार होगा, लेकिन एडीएच कम हो गया तो बहुत जोर के पेशाब लगा नहीं, बार बार पेशाब को जाएगा, पतला एकदम डायल्यूट यूरिन होगा बिकॉज एडीएच इज एब्सेंट। एडीएच नहीं रहा तो परमेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लॉस जाता है। ओके, दिस इज द डिसीज कॉल्ड diabetes insipidus, not mellitus. It is called mellitus is caused due to insulin deficiency. ठीक है, ये ADH deficiency से, so anti-diuretic hormone. It will prevent diuresis. It will not lead to double urine formation. It will reabsorb the water from urine and hence it will form concentrated urine. समझो functions. Okay, why it is called vasopressin? Because it leads to contraction of blood vessels. Hence it is called vasopressin. What is then pitressin? It is artificially synthesized ADH. कैसा ADH? आर्टिफिशियली तैयार करा रहा है कंपनीज में, इसमें अपना आर्टिफिशियल सिस्टम से तैयार करा रहा है। इट इज कॉल्ड पिट्रेसिन। पिट्रेसिन, ओके, पिट्रेसिन इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एडीएच। इसके भी इंजेक्शन देते कुछ लोगों को, आर्टिफिशियली जब उनकी बॉडी में नहीं बनता तो उनको इंजेक्शन देते। ओके, दिस इज अबाउट योर एडीएच। लास्ट वन इज योर ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन, दिस हार्मोन इज कॉल्ड न्यूरोपेप्टाइड, आल्सो नोन एज पिटोसिन। इसके टारगेट साइट्स रहते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, यूटेरस एंड मैमरी ग्लैंड्स। ये तीन जगह पे एक्शन बताएंगे टारगेट साइट। स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी, इट नॉर्मली कॉजेस ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में नॉर्मली भी रिलीज होता, फीमेल्स में जरा ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता, मेल्स में भी वो सीक्रेट होता, फीमेल्स में भी सीक्रेट होता। इट कॉजेस contraction of smooth muscles. It stimulates the contraction of smooth muscles of body. जब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता तो आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन्स विल। उनका कंट्रैक्शन कैसे होगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सारे स्मूथ मसल्स तक पहुंच जाता, एकदम स्लोली सारे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते, रिलैक्स होते और आपको एक रिलैक्सनेस वाली फीलिंग आती। एक्चुअली देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन कब सीक्रेट होता? जब इमेजिन क्या है, आप एक्सपीरियंस के, आपकी मम्मी वगैरह जब आपके सर पे से हाथ फेरती, या फिर आपको कोई तो भी इस तरीके से प्यार से ऐसा, आपका कोई भी चाहने वाला, आपकी मम्मी वगैरह ही रहेंगी जनरली फॉर एग्जांपल, जब इस तरीके से आपको हाथ लगाते या फिर ऐसा हाथ कोई फेरता, तब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और आपको एकदम मस्त लगता, अच्छा लगता अपने को। व्हाई? ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड लव हार्मोन, क्योंकि आपको एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग आती। व्हाई? बिकॉज योर स्मूथ मसल्स हैव अंडरगॉन अ रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उनका बहुत रिलैक्सेशन होता है, मस्त लगता है आपको। सो देयरफॉर ऑक्सीटोसिन कॉजेज देयर, स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हेंस यू फील बेटर, प्लेजर वाली फीलिंग आती है। ओके, वो ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन। ओके, लव हार्मोन मत लिखो सिलेबस में, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कब होगा? जब आपके से मम्मी आपको ऐसा करेंगे, चाटेंगे, कुत्ते के जैसा नहीं चाटते, बस ऐसा ऐसा करेंगे अपने को। सो एट दैट टाइम ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। देन सेकेंडली, it will also lead to, it will cause contraction of smooth muscles of uterus, uterine smooth muscles, यूटेरस के स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। कब? लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इट इज पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब डिलीवरी। जब बेबी फुली ग्रोन हो जाएगा तो उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल करना रहेगा फीमेल को। सो यूटेराइन मसल्स विल अंडरगो विगरस कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लेबर पेन. It is called labor pain. So vigorous contraction and relaxation of uterine muscles will lead to expulsion of baby. So at that time oxytocin will be secreted in female in a very high amount. Okay, अगर कम पड़ गया ऑक्सीटोसिन तो एक्सटर्नली इंजेक्शन देना पड़ता है ऑक्सीटोसिन के, so that contraction should continue and baby should come out easily. Okay, so oxytocin is therefore called birth hormone because it is secreted at the time of birth. दूसरा नाम क्या है हार्मोन का? बर्थ हार्मोन. इट हेल्प्स इन बर्थ और इजी डिलीवरी ऑफ बेबी बाय vigorous contraction of uterine muscles. They are also smooth muscles, they are also involuntary muscles. Okay, after birth when that female will start producing milk under the effect of LTH or prolactin, milk production शुरू हो जाएगा फीमेल की बॉडी में.
राइट, मैमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगा सो दैट शी कैन फीड इट टू बेबी, मदर कैन फीड दैट मिल्क टू बेबी। बट मिल्क बाहर निकलेगा कैसे, क्योंकि मिल्क अभी अंदर मैमरी ग्लैंड्स में है। सो जो आपके चेस्ट मसल्स रहेंगे, सो चेस्ट के जो स्मूथ मसल्स है नीचे से, तो वहां पे के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा एंड इट विल हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। सो दे विल कॉज, दिस हार्मोन विल कॉज, it will cause contraction of muscles, chest muscles to release milk from mammary glands, तो ये मिल्क इजेक्ट करने में हेल्प करेगा आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर ड्यूरिंग 6 months आफ्टर प्रेगनेंसी। सो वो जो काम है इसकी वजह से इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये मिल्क इजेक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन करेगा लेकिन इजेक्ट मिल्क को बाहर रिलीज करने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि पूरे चेस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे सो दैट मिल्क विल बी इजेक्टेड एंड इट विल बी कलेक्टेड एंड इट विल बी फेड बाय मदर टू द यंग वन। ओके, समझ में आ रहा है फंक्शन क्या है। सो यहाँ पे स्मूथ मसल्स अपनी बॉडी के ऊपर भी काम कर रहा है, नॉर्मली यूटेरस के मसल्स पे काम कर रहा है सो दैट इट कैन हेल्प इन बर्थ, हेंस कॉल्ड बर्थ हार्मोन, और मैमरी ग्लैंड्स पर भी वर्क कर रहा है सो दैट इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन, हेंस कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। देखो अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, दैट इज एलटीएच, बट मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज योर पिटोसिन, ओके, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। समझ में आ रहा है। आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन कुछ बोलने का पिटोसिन, जनरली ये इंजेक्शन क्या करते, गाय भैंसों को देते, फीमेल काऊ वगैरह को देते, तो उनका जो दूध रहेगा वो ज्यादा दूध इजेक्ट होगा। बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इंजेक्शंस ऑफ पिटोसिन आर गिवन टू कैटल्स टू इंक्रीज देयर मिल्क यील्ड। आपको एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड पूछ सकते हैं, गाय भैंसों का अगर दूध उत्पादन बढ़ाना है, आपको दूध प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है, मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क इजेक्ट ज्यादा होना चाहिए उनमें से, तो आपको फिर ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देना पड़े। तो आर्टिफिशियली सिंथेसिस पिटोसिन के इंजेक्शंस देते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में देना भी खतरनाक रहता, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ अफेक्ट होती, एबनॉर्मली हो जाएगा ना एक प्रकार से। सो दीज आर द टू हार्मोन्स ऑफ योर न्यूरोहाइपोफाइसिस, एक्चुअली हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, लास्टली एक और हार्मोन देखते हैं, आगे एंड में बना लो एक चार्ट, लेकिन ऊपर मेंशन करो, इसके आगे ही लिखना है, मैं यहाँ पर रब करके लिख रहा हूँ, MSH और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, melanocyte stimulating hormone. So this hormone is actually produced by pars intermedia of adenohypophysis, but in lower vertebrates, not in humans, स्पेशली लिखो ह्यूमन बीइंग में नहीं रहता ये। इट डिसाइड्स द स्किन कलर, तो स्किन सेल्स पे एक्शन बताएगा, मेलानोसाइट्स पर एक्शन बताएगा, डायरेक्ट एक्शन। इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन, दैट इज स्किन पिगमेंटेशन के काम करता है ये हार्मोन, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है, melanocyte stimulating hormone. It will stimulate melanocyte, melanin producing cells to produce melanin protein, melanin pigment. That pigment will impart specific color to the skin of that organism, such as frog की स्किन में जो कलर रहता ग्रीनिश डार्क ऐसे कलर रहते ग्रेइश वगैरह, फिश का जो स्किन कलर रहता, तो लोअर वर्टिब्रेट्स में, फिश में, फ्रॉग में, अदर एम्फीबियंस में, तो इनके अंदर वो ये हार्मोन सीक्रेट होता है बाय पार्स इंटरमीडिया। बट दिस पार्स इंटरमीडिया इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बॉडी, सो देयरफॉर दिस हार्मोन विल नॉट बी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यस, दिस विल बी प्रेजेंट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, याद रखो प्लीज, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ऑनलाइन में, सो यू हैव टू कवर दिस वन। इट इज द हार्मोन ऑफ पार्स इंटरमीडिया एक्चुअली, बट इन लोअर वर्टिब्रेट्स विच डिसाइड स्किन कलर। ओके, अब एक्स्ट्रा स्किन कलर होगा तो ज्यादा काला दिखेगा, कम होगा तो ज्यादा गोरा दिखेगा, कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगा, बस डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन विल चेंज इफ द अमाउंट ऑफ MSH इज चेंज्ड, इज डिफरेंशिएटेड, अगर बदल जाए तो फिर आपके स्किन का कलर भी बदल जाए। ठीक है, फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट।
बट दिस इज नॉट द हार्मोन ऑफ योर न्यूरो हाइपोफाइसिस, सेपरेट करो इसको एडिशनल पॉइंट बोलकर, हार्मोन ऑफ पार्स इंटरमीडिया एडिनो हाइपोफाइसिस का ही है बट अपनी बॉडी में नहीं। ओके, सो हियर इट्स डन, आपके 3 हार्मोन यहाँ पे हो गए। Now let's see the third gland in your body, third endocrine gland, that is pineal gland or pineal body. This gland is also located in brain. It is a small gland, again round shaped, pea-sized रहेंगी, छोटी सी, but slightly greater in size as compared to pituitary. Still pituitary is the smallest endocrine gland. So it is small, round in shape, pinkish in color again. Okay. इनके ज्यादा अपने को कैरेक्टर्स देखने के नहीं है, बट लोकेशन अगर देखें, सो लोकेशन इट अराइजेस फ्रॉम इपिथैलेमस ऑफ डायनसेफेलॉन ऑन डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन। कहाँ है अब इनकी लोकेशन? तो अगर आपको याद आ रहा होगा डायनसेफेलॉन, मैंने आपको एक डायनसेफेलॉन एक क्यूब शेप का स्ट्रक्चर इमेजिन करने के लिए कहा था। इट इज दी पार्ट, यहाँ पे आपका ब्रेन इस तरीके से है और वहां पे क्यूब है, इट इज द डायनसेफेलॉन व्हिच एनक्लोजेस अ कैविटी। इसके जो छत है, मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एपिथैलेमस। जो वॉल से दे आर कॉल्ड थैलेमी और थैलेमस, एंड द फ्लोर इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दिस हाइपोथैलेमस गिव्स राइज टू पिट्यूटरी, और यहाँ पे ऑप्टिक चायस्मा था आपका, राइट? आपको पिट्यूटरी के लोकेशन के टाइम पर ऐसा बताया था। इधर एक रहेगा कैविटी ऑफ स्पिनॉइड बोन नोन एज सेला टर्शिका और टर्किश सैडल। ओके, लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें, सो पीनियल ग्लैंड इज अटैच्ड हियर, पीनियल ग्लैंड इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन। अभी डायनसेफेलॉन का डब्बा, उसकी रूफ मतलब छत कौन है? एपिथैलेमस। सो एपिथैलेमस ऑफ डायनसेफेलॉन और रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन। जबकि पिट्यूटरी कहाँ है? पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, दैट इज हाइपोथैलेमस। बेसल पार्ट, फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस, बेसल पार्ट। ओके, डायनसेफेलॉन इट इज द फ्लोर। सो यहाँ पे फ्लोर से रहेंगी तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड और रूफ पे रहेंगी पीनियल ग्लैंड। तो डायनसेफेलॉन के ऊपर है पीनियल, नीचे से है पिट्यूटरी। सो लोकेशन ऑन द डॉर्सल साइड, सामने के साइड में ही है, इस तरीके से सामने की तरफ है, ठीक, सॉरी इस तरीके से पीछे की तरफ है। दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। ओके, सो इधर से रहेंगी वो और इधर से रहेंगी वेंट्रल साइड। तो ये लोकेशन एपिथैलेमस दैट इज रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन पे अराइज होती है, डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन पर। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स कौन है इसके? सो सिक्रेट करने वाले सेल्स कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। They are actually non-nervous cells found around neurons. वो कुछ conduction impulse वगैरह कुछ काम नहीं करते. They are just nutritious and protective in function. They are called neuroglial cells. Okay, and there are some special cells, pinealocytes. Pinealocytes which secrete melatonin and serotonin. These two hormones are secreted by pinealocytes or pineal gland. मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, समझा? ओके, आपने को इतना देखना, डायरेक्टली आ जाते फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। तो तुम्हारा हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। सो हार्मोन इज मेलाटोनिन। ओके, अगर सिक्रेटेड बाय देखें, सो अगेन सिक्रेटेड बाय योर पिनियलोसाइट्स। ओके, नेचर भी देखे इसका, सो पेप्टाइड हार्मोन है ये भी। ओके, और फंक्शन देखे तो ये बहुत सारे काम करता। इट रेगुलेट्स योर डायर्नल रिदम ऑफ बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्काडियन रिदम और 24-hour साइकिल ऑफ बॉडी और डे नाइट साइकिल ऑफ बॉडी। अब डायर्नल रिदम क्या है? डाय मतलब दो, दिन और रात, दो समय रहते। सो दिन के समय आपकी बॉडी का बिहेवियर अलग और रात के समय अलग रहता। हाउ? ड्यूरिंग डे यू आर अवेकन्ड, मोर एक्टिव, योर बॉडी टेम्परेचर इज स्लाइटली हायर एज कंपेयर्ड टू नाइट, एंड ड्यूरिंग नाइट योर बॉडी एक्टिविटीज आर लेस, you are somewhat less active during night, and the body temperature also decreases below the normal temperature, थोड़ा सा कम रहता। सो क्या हो रहा है? आपको स्लीप और वेक ये दो कंडीशन आती,
रात में अपन सोते, दिन में जनरली जागते। नॉर्मली जो चमगादड़ है वो अलग लोग रहते, वो रात में जागते दिन में सोते, वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दे जनरली स्लीप ड्यूरिंग नाइट एंड अवेक ड्यूरिंग डे, दिन में जागे रहेंगे। इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर भी आपका दिन में अलग रहेगा, ज्यादा रहेगा थोड़ा सा, नाइट में कम है। सो ये जो काम हो रहा तुम्हारा सोना जागना तो बराबर चलते रहता। रात आने पर नींद आती, शाम के बाद से नींद शुरू हो जाती, थोड़े से लेस एक्टिव होने लगते, और दिन आने के बाद हम जाग जाते, नींद खुल जाती। ऐसा क्यों होता? ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। ऐसा माना जाता डार्कनेस अगर ज्यादा है, डार्कनेस ज्यादा है मतलब इस लो लाइट है, लाइट कम है, सो इससे क्या होता? इंक्रीज्ड मेलाटोनिन सिक्रीशन, मेलाटोनिन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाता, 10 फोल्ड बढ़ जाता, 10 गुना ज्यादा हो जाता। जितना ज्यादा मेलाटोनिन रहेगा उतना ज्यादा आपको स्लीपीनेस आएगा, दैट लीड्स टू स्लीपीनेस, नींद आएगी आपको। सो अंधेरे में क्या होगा? फिर ज्यादा मेलाटोनिन और आपको नींद आएगी, और जब सुबह आने लगती तो ऑटोमेटिकली उसका लेवल कम होने लगता, ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुल जाती। ओके, सो अगर आपको नींद अगर आर्टिफिशियली इंड्यूस करना है तो मेलाटोनिन के भी आप आर्टिफिशियली ओरली ले सकते, तो उसके बाद आपको नींद आने लगेगी। तो जिनको डे नाइट शिफ्ट में काम करने का रहता, टाइम बदल के स्लीपिंग कंडीशन बदलने की रहती, तो वो मेलाटोनिन को ओरली भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज मेलाटोनिन को भी ओरली ले सकते। ओके, सो इट विल हेल्प इन इंड्यूसिंग स्लीप melatonin, and it will also induce awakening, so this will control your body diurnal rhythm. This will also change your body temperature during day and night, hence it is the most important hormone to regulate your diurnal rhythm, also known as circadian rhythm or 24-hour day night cycle of your body. Hence this gland is also known as biological clock. कौन सी क्लॉक? बायोलॉजिकल क्लॉक। एक प्रकार की घड़ी हो गई ना, दिन में जागो रात में सो जाओ, दिन में जागो रात में सो जाइए। आपको कौन एहसास दिला रहा है इस चीज का? इट इज गिवन बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ पीनियल ग्लैंड। सो विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी? दिस इज योर पीनियल बॉडी। ओके, आप बोलेंगे सर बॉडी टेम्परेचर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is the thermoregulator of body. Yes, that is correct. But hypothalamus also controls the pineal gland. वो pineal gland पे भी suprachiasmatic nuclei के थ्रू कंट्रोल रखता है, उसके न्यूरॉन्स वहां पे भी गायब रहते हैं। और जब में इसको पता चल जाता कि टेम्परेचर बढ़ाना है तो वो pineal gland से मेलाटोनिन सिक्रेट करवा के टेम्परेचर चेंज करवा देगा। Okay, so it will be connected to hypothalamus and they will simultaneously work and they will regulate body temperature too. ओके, मेन फंक्शन समझा। दिस विल ऑल्सो अफेक्ट, मेलाटोनिन विल ऑल्सो कंट्रोल योर पिगमेंटेशन। ऐसा माना जाता है कि अपने स्किन कलर वगैरह डिसाइड करेगा, हेल्प करेगा स्किन कलर को। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल को भी ये अफेक्ट करता, बिकॉज इट इज ऑल्सो पीरियोडिक साइकिल इन फीमेल्स। मंथली साइकिल रहती फीमेल्स में, तो उसकी वजह से वो एक हिस्सा हो जाएगा लाइफ का, पीरियोडिकली आने वाला एक साइक्लिक चेंज है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। इट विल ऑल्सो रेगुलेट योर डिफेंस एक्टिविटीज, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, और ऑक्सीजन की वजह से फिर जो कुछ भी क्या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आयंस रहेंगे अपनी बॉडी में नुकसान करने की कोशिश, ये उसको डीएक्टिवेट कर देगा और आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन करेगा। सो इट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। Okay, so what are the functions of melatonin? Diurnal rhythm is controlled, pigmentation is under its control, menstrual cycle, defense mechanism and antioxidant properties are shown by your melatonin. Lastly, serotonin, वैसे तो आपको मेंशन नहीं है, बट सेरोटोनिन इतना याद रखो, हैप्पीनेस हार्मोन है। सेरोटोनिन इट इज मेनली अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट विल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जस्ट लाइक योर एसिटिलकोलिन, डोपामाइन के जैसा। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका अगर लो लेवल हो गया तो डिप्रेशन हो जाएगा आपको। डिप्रेशन में जब जाते हैं तो अपने पास इसका लो लेवल रहता सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन ज्यादा हो गया तो आप हैप्पीनेस या फिर प्लेजर वाली फीलिंग आती। सो इट इज एसोसिएटेड विद फीलिंग्स। लो सेरोटोनिन रेफर्स टू डिप्रेशन वाली कंडीशन एंड हायर लेवल मींस योर हैप्पीली कंडीशंस, हैप्पीनेस वाली कंडीशन, ऐसा मानते हैं। ओके, सो सम अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। ओके, ऐसा मान। So that's all about the small gland, pinealocytes, उसके special cells which secrete these hormones. Melatonin is the chief hormone here which regulates these functions, hence it is called biological clock.
यहाँ पे आपका पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस वाला पार्ट खत्म होता. विल स्टार्ट द लार्ज ग्लैंड, अनदर ग्लैंड, योर thyroid gland located in your neck and its hormones in our next lecture.